going to start first chapter of the syllabus, second year textbook 20 minutes with Mrs. O'Kentum by Frank Arthur. 20 minutes with Mrs. O'Kentum by Frank Arthur. So ये first chapter की question answer summary explanation of the important lines of the text we will discuss in detail. So we are going to start first chapter 20 minutes with Mrs. O'Kentum by Frank Arthur. Now see, 20 minutes with Mrs. O'Kentum by Frank Arthur. First we will discuss characters and about the author Frank Arthur. He was a civil servant, playwright and a novelist. And Frank Arthur के बारे में हम डिटेल में भी थोड़ा उसके बारे में जो वर्क और उसके अलावा जो 20 मिनट्स O'Kentum जो हम इसको एक मेलोड्रामा है. You all know melodrama जिसमें सस्पेंस हो और इसमें थ्रिलिंग इंसिडेंट है विद सस्पेंस राइटर ने रखे हैं, तो उसको हम जो है रीड करते हैं 20 मिनट्स विद मिसेस O'Kentum बाय फ्रैंक आर्थर. Now introduction first. This masterpiece is written by Frank Arthur, civil servant, novelist, and playwright. The play is a melodrama and it's a tragic plot about he who loses his happy family due to reckless driving and Mrs. O'Kentum, a fit from drunken state. Having read a 5 pound of the road and set of people, she takes two innocent lives and destroys the whole family of he. Now see, this is a brief story. Now we will discuss how the lady, took life of the two pedestrians and destroyed the family of B. Now we will discuss in detail, but first we are going to start. This play consists of three characters. Now we will have to read out he, she, and Potter. Potter कुली को बोलते हैं, and the name is not mentioned. She and he. Now see these three characters, and the story starts with the stormy winter evening. And now see, first we are going to discuss summary of the whole story, then we will read important question on of the chapter and revision. So let's start with the summary. First we have read about the Frank Arthur, the civil servant, novelist and playwright, and 20 minutes Mrs. O'Kentum is a melodrama, and now we are going to start summary. Some background. In the background, Mrs. O'Kentum, wife of a prosperous businessman, fond of wine and parties, has wagered betting 5 pounds with the rod and set of people to drive from Stanford to the coast in less than 15 minutes. मिसिज ऑफिंटम जो एक बिजनेसमैन की वाइफ होती है एंड फॉन्ड ऑफ वाइन एंड पार्टीज 5 पाउंड की जो है जो आवारा लोग होते हैं उनसे शर्त लगाती है कि इस ट्रेन से कोस्ट का जो रास्ता है 15 मिनट में तय कर लेगी. Now in reckless driving she comes to blind friend and a lorry and hand of her while two pedestrians, a mother and a daughter, are together unaware of tragic end. जब वो ड्राइविंग कर रही होती है तो उनके सामने एक लॉरी आ रही होती है, तो उनके पास चांस होता है अपनी जान बचाने का. तो गाड़ी जो है जहाँ जो लोग पैदल जा रहे होते हैं ऑपोजिट साइड टर्न कर लेती है, और जिसमें जो ही कैरेक्टर बताया गया उसकी वाइफ और डॉटर की डेथ हो जाती है. On the pavement she has two options, either to collide against the lorry in front of her and lose her life, or turn over pavement and crash two innocent lives. उनके पास ऑप्शन होते हैं, या अपनी जान की सेक्रीफाइस देना, अपनी गाड़ी को उस लॉरी से टकरा देना, या दो पैदल जो लोग जा रहे हैं उनकी जान ले लेना. नाउ शी सेव्स हर लाइफ एंड किल टू इनोसेंट पेडेस्ट्रियन. वो अपनी जान बचाती है और दो जो लोग पैदल जा रहे थे उसकी जान लेती है. एंड लेटर ऑन ही डेस्परेटली डिजायर टू डाई वंस. In a story in 1953, when a Korean girl reminded him that if your daughter would have lived, might be look like the same girl, 14 year aged. So वो आदमी पहले मरना चाहता था, बाद में उन्हें कोरियन गर्ल जो होती है उनको देख के उनको अपनी बेटी याद आती है कि काश उनकी बेटी जिंदा होती इसी तरह दिखती. तो डिसाइड करता है, now what, I don't want to die, I want to take revenge from the lady to destroy my life. He was seriously wounded and lying on the battleground, find a Korean Somali girl bending over him, offering water. Somali girl reminded him of his lost family, as I discussed, and then he decided
to take revenge. फिर वो आदमी जो है रिवेंज लेने का सोचता है. On entering waiting room while going to Stanthorpe. और वेटिंग रूम में वो जैसे जब स्टैनथॉर्प मिसेस अकिंटन शी लिव्ड एट स्टैनथॉर्प, तो आदमी उसकी तलाश में जाता है. As from the title we have seen that train is 20 minutes late, and he is going to Stanthorpe and waiting for the train. So he and she they met on a platform, and they are waiting for the train. And train is 20 minutes late now. They have a discussion with one another, and now there is a suspense. And now let's see. We will read out. He came to know the lady waiting together for the same train and same destination was the one, but the lady is looking for the killer of his family. When he saw the lady, when he entered in the waiting room, his glance fell on the label on which name of Mrs. O'Kentam is written, and he realized that the lady is none but Mrs. O'Kentam, and he is searching for that lady, and he find out, but he kept it secret because. Why he kept it this secret? Because his glance fell on the lady whose name was written Mrs. O'Kentam. But he kept it suspense. The reason is that later on, Mrs. O'Kentam was a sharp lady. Now see, why he kept secret? Because he wanted to know the fact behind murder. But later on, Mrs. O'Kentam was a sharp lady while finding the person and thoroughly determined to kill lady. Now later on, Mrs. O'Kentam realized that the man wanted to kill her, and then she plays fox. She started imploring her not to spare her. He became confused and planned that your punishment is to live. Now Mrs. O'Kentam played a trick. She said that if you kill me and blot out that picture which revolved in my mind. I want to die. I don't want to live because I don't want to live. The picture revolves on my mind every time I think of that murder. So it is better for me that I don't want to live, and just kill me, blot out that picture which revolves in my mind. Then the man think that killing Mrs. O'Kentam is not my true revenge because she wanted to die. My true revenge is to let her live. So he decided when he was leaving the room, she bending on her knees and keep smiling and jumping. So real punishment for Mrs. O'Kentam is to live, and he just kick her and went. And later on, Mrs. O'Kentam keeps smiling and jumping because she played trick successfully. Later on, suddenly he has a chance to peep into the room because he forgot suitcase. As you know, this story is a suspense. And then the man forgot the suitcase and feeling befooled. And so he realized that the lady is playing with me and keeps smiling and jumping and bending on her knees. So he entered in the room and hurriedly leaves it with a blood sound and a sharp shriek. So he picked up his revolver and fired, and Mrs. O'Kentam died on the spot, and he carried suitcase and hurried out. So that was the sudden and surprise ending as we seen in the tragic story of the melodrama. As Frank Arthur kept suspense. Now in this story, now the suspense point as you have discussed. Now we are going to start important question answer of the story. These questions answers are very important, and we will discuss one by one important question answer of the story. As we have discussed the story in detail, in the end of the story, Mrs. O'Kentam died, and the writer kept suspense to find, will he find out who she is, and will he kill her? These points writer kept in suspense. Now see, explain the importance of label on Mrs. O'Kentam suitcase. Why does she hide it? जो लेबल था मिसेस ओकेंडम के सूटकेस के ऊपर वो क्यों छुपाती है? द रीजन वाज दैट सूटकेस बोर्ड द नेम ऑफ मिसेस ओकेंडम बिकॉज उसके ऊपर मिसेस ओकेंडम का नाम लिखा होता है. जो लेबल होता है, जो सूटकेस के ऊपर लेबल होता है अटैच, उसके ऊपर नाम लिखा होता है. शी टक द लेबल अंडर द फ्लैप सो दैट इट वाज नो लॉन्गर विजिबल टू द मैन हु हैड डिसाइडेड टू किल हर for crushing his innocent wife and child to death.
बिकॉज वो लेडी ये नहीं चाहती थी कि ये लेबल उस आदमी को नज़र आए जिसके ऊपर मिसेज ओकेंडम का नाम था और उन्होंने जो है ये मर्डर किया था। पहले वो उसको एक्सीडेंट कहती थी एंड लेटर ऑन उसने जो है जब देखा कि वो आदमी पहचान गया है तो वो फिर जो है लेटर ऑन उस चीज़ को एक ट्रिक प्ले करती है। और आपने ये भी हमने स्टोरी में पढ़ा कि अमूमन आपने देखा है कि ये शी वॉज रिच लेडी एंड अदालत में जज के सामने कहती है कि इट वॉज एन एक्सीडेंट, आई सॉ देम आफ्टरवर्ड, अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गए, इसलिए सिर्फ इनको 18 महीनों की सज़ा हुई और ये आदमी रिवेंज लेना चाहता था। तो सोचता था कि 18 मंथ इम्प्रिजनमेंट इज नॉट इनफ टू मर्डर एंड her identity was well expressed from the tag and it was real proof of her identity। जो टैग के ऊपर नाम लिखा हुआ था जिससे इस लेडी की आइडेंटिटी शो हो रही थी, इस रियल प्रूफ था आइडेंटिटी का, इसलिए वो छुपा लेती है और जो है दैट वाज द रियल प्रूफ ऑफ हर आइडेंटिटी एंड शी टक द लेबल अंडर द फ्लैप सो नो लॉन्गर विजिबल फॉर द मैन हु हैड डिसाइडेड टू किल हर। These are the very important question. Now question number 2 we are going to discuss. This one question number 2 and question number 3. Both questions are very important. Now see question number 2. When is the audience likely to begin to suspect that she might be Mrs. Okentam? ऑडियंस को कब पता चलता है कि लेडी जो है मिसेस ओकेंटम है? ऑडियंस को कब डाउट होता है? When then the man declared that the Korean girl innocent Samal gave him a purpose in life, and it was to kill the woman who had crushed his wife and child to death. Mrs. Okentam grew nervous. She was afraid and urged him not to dedicate his life to wickedness and hatred. A short while after, audience saw her taking the label under the flap to hide her identity. At this point, audience began to suspect that she might be Mrs. Okentam. एक्चुअली हमें ये आइडिया हुआ कि 1953 में जब कोरियन गर्ल जो उनकी बेटी की तरह दिखती थी, 14 इयर्स की एज की थी, वो उनको जब वाटर ऑफर करती है और वो उनकी स्माइल को देख के उनको अपनी बेटी याद आ जाती है, तो वो सोचता है कि द पर्पज इन माई लाइफ नाउ आई डोंट वांट टू डाई, आई वांट टू टेक रिवेंज, दैट इज द एम ऑफ माई लाइफ। और उस लड़की की स्माइल को देख के उन्हें ये अपनी बेटी की याद आती है कि काश वो जिंदा होती, इसी तरह दिखती। एंड शी वॉज अफ्रेड एंड अर्ज्ड हिम। और वो हम देखते हैं कि जब वो मिसेज ओकेंटम को जो उनके सामने बैठी होती है, वो ये कहता है कि जब मिसेज ओकेंटम उन्हें कहती है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी जो है नफरत में और इससे एक लड़की के कहने पे आप इस तरह करेंगे, ये भी नहीं सोच सकती। तो वो जब उन्हें इम्प्लोर करती है, रिक्वेस्ट करती है कि इस तरह आप नहीं करें, तो वो आदमी कहता है, हमने जैसे टेक्स्ट बुक में लाइन्स पढ़ी थी, द वेंजेंस इज माइन सेड द लॉर्ड। मिसेज ओकेंटम जब उन्हें कहती है कि खुदा कहता है बदला लेना मेरा काम है, तो उसके बाद वो आदमी क्या कहता है, आई डोंट बिलीव इन दैट स्टफ, यू हैव किल्ड माई वाइफ एंड डॉटर एंड आई वांट टू टेक रिवेंज। और जो है मैं बदला खुद लूँगा। उसके बाद वो हम देखते हैं कि जब वो लेडी फाइनली लेबल को जब छुपा लेती है, अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेती है, इस पॉइंट में ऑडियंस को डाउट होता है कि ये लेडी जो है कोई और नहीं है, मिसेज ओकेंटा भी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मोटिव हैज द मैन फॉर मर्डरिंग हर? उस आदमी का क्या मकसद था मिसेज ओकेंटम को मारने का? द मेन मोटिव इन मर्डरिंग मिसेज जूडी ओकेंटम वाज टू एग्जीक्यूट जस्टिस। वो इंसाफ लेना चाहता था बिकॉज उनको ये लगा कि 2 महीनों की 18 मंथ की सज़ा 2 मर्डर के लिए इनफ नहीं है, और मिसेज ओकेंटम ने 2 मर्डर किए और सिर्फ 18 महीनों की सज़ा हुई है, वो इनफ नहीं है। ही फेल्ट दैट लेडी वाज नॉट ड्यूली पनिश्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। और कोर्ट ने उनको लगा कि मेरे साथ इंसाफ नहीं किया है, 2 मर्डर में उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई और इस वजह से वो बदला लेना चाहता था फॉर डेलिब्रेट एंड क्रिमिनल फॉली क्रशिंग हिज वाइफ एंड डॉटर टू डेथ। और जिसने मिसेज ओकेंटम ने जिस तरीके से ड्राइविंग की और शर्त लगाई हुई थी और नशे की हालत में थी, तो इन्होंने सोचा कि इस लेडी ने जो कुछ किया है मेरी फैमिली के साथ और ये मेरे साथ सही नहीं हुआ, आई वांट टू टेक रिवेंज फ्रॉम दैट लेडी एंड 18 मंथ इम्प्रिजनमेंट नॉट इनफ फॉर मी, सो ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम दैट लेडी। और वो फिर रिवेंज लेने का सोचता है और इसलिए एंड में जो है मिसेज ओकेंडम का मर्डर करता है, एज वी हैव सीन। नाउ सी these questions are very important, note it down on your register, question number 2, question number 3, and we are going to discuss the important questions because you don't know which question might come in exam, so you must have to memorize all these questions. Very important.
we are going to discuss these important questions. Now, see, why, in your opinion, does the author make the Potter a humorous character? Writer जो होता है Potter को humorous character क्यों बनाता है? Frank Arthur. Now, see, the play, the thriller, suspense, comic, humor are the essential qualities of a thriller. ये जो essential qualities हैं thriller की, romance, suspense, and humor. The Potter has been made a humorous character to remove the effect of the gloomy atmosphere by his romantic manner of talking. पॉटर का जो वे होता है, वे ऑफ टॉकिंग होता है, रोमांटिक होता है। एंड हमने इसमें कोटेशन भी कुछ पढ़े। वो पॉटर कहता है दिस जॉब इज फिट फॉर अ शेरी डॉग। एंड वो जो है उन लोगों के लिए उनके ही और शी के जो है लगेज वगैरह प्लेटफॉर्म पे रखना और उनके लिए जो है अरेंजमेंट करना। और एंड में जब ग्लूमी एटमॉस्फेयर होता है व्हेन ही वांटेड टू किल दैट लेडी और वो रिवॉल्वर निकालता है, इस एटमॉस्फेयर में वो जो है कहता है कि ट्रेन जो है वो 5 मिनट और लेट है और वो उनकी एंट्री होती है। तो एक ग्लूमी एटमॉस्फेयर को कम करने के लिए एक कॉमिक रिलीफ राइटर ने जो है एज ए ह्यूमरस कैरेक्टर, मज़ाहिया कैरेक्टर पॉटर का जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। ही कम्स एज ए ग्रेट रिलीफ इन द टेंस एंड ग्लूमी एटमॉस्फेयर। टेंस और ग्लूमी एटमॉस्फेयर में पॉटर की एंट्री होती है ताकि एक कैरेक्टर इस तरह का इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि मज़ाहिया ह्यूमरस कैरेक्टर होता है ताकि वो जो टेंस सिचुएशन है उसको थोड़ा सा ओवरकम किया जाए। एंड प्रॉबली दिस एटमॉस्फेयर प्रोवाइड द होल प्ले। इस पूरे प्ले में हम देखते हैं मेलोड्रामा है, सस्पेंस है, समटाइम टेंशन बिल्ट अप एंड राइजेस एंड समटाइम रिलैक्स। थ्रू आउट द प्ले हमने देखा पूरी स्टोरी में किसी तरह होता है टेंशन बिल्ट अप राइज एंड राइटर 2 पॉइंट सस्पेंस रखता है। हमने पढ़ा कि विल ही फाइंड आउट हु शी इज एंड विल ही किल हर। ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर जो है राइटर जो है सस्पेंस रखता है। नाउ व्हाई वर ही गोइंग टू स्टैंड फॉर? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पढ़ा he was going to Stanthorpe in order to take revenge from Mrs. Jodie O'Kendall. Mrs. Jodie O'Kendall से revenge लेने के लिए वो Stanthorpe जा रहा होता है because she killed his wife and daughter while driving her car criminally fast in a drunken state in a busy area for a bid of £5. Again we are going to read because she killed his wife and daughter while driving her car criminally fast in a drunken state in a busy area for a bid of £5. क्वेश्चन ये है कि ही स्टैंथरॉप क्यों जा रहा था? बिकॉज मिसेस जूडी ओकेंटम शी किल्ड हिज वाइफ एंड डॉटर। उस आदमी की वाइफ एंड डॉटर का मर्डर हुआ जब शी जो है मिसेस ओकेंटम, उन्होंने अपने गाड़ी जब वो चला रही थी उसके सामने लॉरी आ रही थी, उनने अपनी जान बचाने के लिए उस तरफ गाड़ी को टर्न कर लिया जहाँ लोग पैदल जा रहे होते हैं और ही की वाइफ और डॉटर की डेथ हो जाती है। तो इस लेडी से मिसेस ओकेंटम से बदला लेने के लिए वो स्टैंथरॉप जा रहा था। मिसेस ओकेंटम ने £5 की शर्त लगाई हुई थी और शी वॉज अ ड्रंकर्ड लेडी। और अमूमन जो है उन्होंने जज के सामने जब ये कहा कि आई सॉ देम आफ्टरवर्ड इट वाज एन एक्सीडेंट, और इस आदमी को लगा कि उसके बाद जब जज ने 18 महीनों की सज़ा सुनाई तो आदमी उससे सेटिस्फाइड नहीं था। उन्हें लगा ये 18 month imprisonment is not enough for 2 deliberate murder. That is why he decided to take revenge. पहले वो मरना चाहता था, बाद में उसने रिवेंज लेने का सोचा और फिर मिसेस ओकेंडम से उन्होंने रिवेंज लिया। एंड ही ऑल्सो सॉ वंस अ फोटोग्राफ ऑफ हर इन अ न्यूज़पेपर एंड ही वाज लुकिंग फॉर मिसेस ओकेंडम। और वो जब प्लेटफॉर्म पे जाता है उनकी नज़र उस लेवल पे पड़ती है और वो पहचान जाता है, बट वो सस्पेंस रखता है ताकि उनसे सारी डिटेल्स उनके बारे में, मर्डर के बारे में वो जान सके। तो हमने ये इसमें नोट किया कि वो स्ट्रेंथ ऑफ इसलिए जा रहा होता है ताकि उस लेडी से रिवेंज ले सके। Now see next we are going to discuss important other question. What is the significance of the incident of the Korean girl? Discuss in brief the impact of meeting on the mind of man. Now see जो कोरियन गर्ल का इंसिडेंट होता है 1953 में, उसका क्या जो है सिग्निफिकेंस, क्या इम्पोर्टेंस है और उसकी मीटिंग के बाद उस आदमी के जहन के ऊपर इसके क्या क्या असर पड़ा। Now see, the incident is very much important in the melodrama because he wanted to die before meeting with the Korean girl. But after seeing the Korean girl, he decided to live and take revenge from the murderer. It is the turning point in the film that compelled the man to take revenge
and decided not to die in spite of much pain and injuries. Previously wanted to die. Later on, when he realized that if my daughter would have been look like a same girl, like the Korean girl at 14 years age, and तो वो आदमी देखता है कि ये जो लड़की है मेरी बेटी की तरह दिखती है और काश मेरी बेटी जिंदा होती इसी तरह दिखती। पहले वो मरना चाहता था, उनको स्ट्रेचर पे लेके जा रहे थे, he said that I wanted to peg out means die, but suddenly he realized उनको लड़की को देख के उनको अपनी बेटी की याद आ जाती है। Then he decided to take revenge from the murderer. मिसेज ओकेंडम से बदला लेने का सोचता है। उनको लगता है कि कोर्ट unable to provide or execute justice with me and for 2 murder 18 months imprisonment not enough and I want to take revenge and then this is the turning point in the film। उस लड़की जो है जब उनको देख के उनको एक ख्याल आता है रिवेंज का और फिर वो रिवेंज लेने का सोचता है, कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ वर्स्ट पेन आई डोंट वांट टू डाई, in spite of worst pain and injuries I don't want to die, I want to take revenge from the lady और उस लेडी से मैं जो है बदला लेना चाहता हूँ। उसके बाद देखें ये क्वेश्चन एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है what are the reasons that the man does not kill Mrs. Oquendo and condemn her to live? Mrs. Oquendo is a very sharp and cunning kind of lady. When men decided and prepared to kill her, she pretended and beseeched him to kill her. And she said, "This time I had more picture, one picture in my mind. I swear you did not see them. Later on, I saw them afterward." ये हमने जैसे डिस्कस किया था कि मिसेज ओकेंटम, क्वेश्चन ये है कि क्या रीजंस हैं, जैसे वो आदमी मिसेज ओकेंटम को जो क्यों नहीं जो है मारना चाहता, जब उसने पहले मारना चाहता था फिर उसने अचानक भी छोड़ दिया जिंदा रहने के लिए, बिकॉज द लेडी प्ले अ ट्रिक। पहले वो एक ट्रिक प्ले करती है, जब उन्हें लग जाता है कि आदमी ने डिसाइड कर ही लिया है उसको मारने का, तो वो प्रिटेंड करती है, बहाना बनाती है एंड उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि आप मुझे मार दें। beseech means request him to kill her. And she said, and I have one picture in my mind. She said that the picture always revolve around my mind. I swear, kill me, blot out that picture which revolve in my mind. कह रहे हैं आप मुझे मार दें, मेरे जहन में हमेशा ये सीन घूमता रहता है, जिस तरह मैंने ये एक्सीडेंट हुआ, जिस तरह मर्डर हुआ, ये सब जो है, इससे अच्छा आप मुझे मार दें, मैं कसम खाती हूँ मैंने उन्हें बाद में देखा और ये अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गए। आई सॉ देम आफ्टरवर्ड। ये सेम उन्होंने अदालत के सामने, जज के सामने भी कहा था। द मैन बिकम कन्विंस्ड बाय द आइडिया, और उसके बाद वो ये डिसाइड करता है द ग्रेट पनिशमेंट फॉर यूज टू लिव, एंड वो उन्हें जिंदा छोड़ देता है। वो कहता है कि ये खुद ही जो है ये चाहती कि मैं उसे मार दूँ, अगर मैं मार दूंगा तो दैट वुड नॉट बी माई ट्रू रिवेंज। माई ट्रू रिवेंज इज दैट मैं इसे जिंदा छोड़ दूँ ताकि ये जिस तरह जो इनको पछतावे रिपेंट या इस तरह ये पूरी ज़िंदगी इस तरह गुजारे। बट उन्हें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि शी इज़ प्लेइंग अ काइंड ऑफ ट्रिक in order to save her life, and she becomes successful in playing trick with the man, and वो आदमी फिर जो उस वक्त रियलाइज नहीं कर पाता और उन्हें जो है ये जिंदा छोड़ देता है और कहता है कि आपकी पनिशमेंट यही है कि आप जो है जिंदा रहें। बट हमने देखा एंड में वो आदमी अचानक जो है जब देखता है मिसेज ओकेंडम इज वेरी हैप्पी एंड शी इज डांसिंग, और वो आदमी अपना सूटकेस भूल जाता है और अचानक रूम के अंदर एंटर होता है, देखता है कि मिसेज ओकेंडम तो बहुत खुश है, तो अपना रिवॉल्वर निकालता है, फायर करता है एंड किल द लेडी, एंड वो अपना रिवॉल्वर पे रखता है, सूटकेस लेता है, वहाँ से चला जाता है। दैट वाज द सरप्राइज एंडिंग ऑफ द स्टोरी एज वी हैव सीन। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, now what is the theme of man idea, the substance of the melodrama? That is one of the important question we are going to discuss, क्योंकि मेलोड्रामा की थीम लाजमी पूछते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैन आइडिया क्या है, कभी कभार वर्डिंग चेंज कर देते हैं, थीम क्या है, सबस्टेंस क्या है, मैन आइडिया क्या है, मोरल आइडिया क्या है मेलोड्रामा का, या कभी कभार पूछते हैं मेलोड्रामा का या 20 मिनट मेलोड्रामा नाम भी दे सकते हैं, तो आपने इसका जो है आइडिया होना चाहिए। Now see, the main idea of this melodrama is that if the justice is not rendered by the court, then people take law into their hands
कह रहे हैं अगर कानून जो है लोगों को इंसाफ नहीं दे पाता तो लोग जो है कानून अपने हाथ में लेते हैं। एज वी हैव सीन, जब वो ही जो होता है वो रियलाइज करता है कि मिसेज ओकेंटम ने 2 मर्डर किए हैं एंड शी इज़ अ रिच लेडी, अपनी ताकत अपने पैसों की वजह से वो सिर्फ 18 महीनों की सजा हुई और वो बच गई, और उन्हें फील होता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। एंड में वो कानून जो अपने हाथ में लेता है और मर्डर करता है। दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज। एंड इसलिए वो सोचता है कि बदला मैं लूँ, और वो बदला लेता है उस लेडी से। देखें, रिवेंज का सिनोनिम्स जो वेंजेंस भी है। वेंजेंस का मतलब भी होता है टू टेक रिवेंज। The lady who was responsible for the double murder of his wife and daughter was not even charged with murder due to her influence and wealth. जो लेडी जिसने दो दो मर्डर किए थे, बट फिर भी उनकी जो है पैसे, उनकी शोहरत और उनकी जो इन्फ्लुएंस की वजह से उनको जो है, उनको जो वकील होता है उनको कहता है कि आप जज के सामने, मिसेस ओकेंडम को कहता है आप ये कहें कि ये अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गए और मैंने इन्हें नहीं देखा, इस वजह से जो है मिसेस ओकेंडम बच जाती है और उनको सिर्फ 18 महीनों की सजा होती है 2 मर्डर के लिए। Hence, the author conveys the message that the court should render justice to all equally and should not come under any influence in order to maintain the credibility of the court. Again, we are going to read, it is very important. And the author, Frank Arthur, conveys the message that courts should render justice to all equally and should not come under any influence in order to maintain the credibility of the कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम रीड करते हैं। ऑथर ये मैसेज कन्वे करता है जो अभी हमने रीड किया कि कोर्ट को सबको जस्टिस देनी चाहिए, इंसाफ देना चाहिए, इक्वली इंसाफ देना चाहिए और किसी दबाव में नहीं आना चाहिए, तभी कोर्ट की क्रेडिबिलिटी मेंटेन हो सकती है। और मतलब लोगों को इंसाफ देना चाहिए और इक्वली ट्रीट करना चाहिए, लोगों को जस्टिस देनी चाहिए। मिसेस ओकेंडम की तरह जो जैसे उनको सज़ा नहीं 18 महीनों की इनफ नहीं थी, उस आदमी को लगा, तो उनको लगा ये मेरे साथ इस केस में नाइंसाफ़ी सिर्फ एक केस में हुई है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि कोर्ट को सबको जो है इक्वली इंसाफ देना चाहिए। इस केस की तरह लोगों के साथ जो है नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए और लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। तो हमने ये मोरल आइडिया पढ़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी, ये क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं, दीज क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हमने स्टार्टिंग में स्टोरी इस तरह से पढ़ी कि फ्रैंक अर्थर ने एक मेलोड्रामा लिखा है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटम बाय फ्रैंक अर्थर। फ्रैंक अर्थर सिविल सर्वेंट, नॉवेलिस्ट और प्लेराइट होते हैं और उन्होंने ये जो मेलोड्रामा लिखा है इसमें सस्पेंस है। 3 कैरेक्टर्स हमने पढ़े, ही, शी एंड पॉटर। ही का नाम नहीं बताया गया है। स्टोरी इस तरह से स्टार्ट होती है, विंटर्स इवनिंग, जो से लेडी जो है मिसेस ओकेंटम वो स्टैनफोर्ड की रहने वाली होती है, स्टैनफोर्ड जा रही होती है और उनको स्ट्रेंजर एक आदमी उनसे जो है प्लेटफॉर्म पे मिलता है। वो आदमी जो होता है एक कलर टाइप पर्सन होता है, मिसेस ओकेंटम एक रिच लेडी होती है बट उनके लिए स्ट्रेंजर होता है। आपको हुआ ये था कि हमने पढ़ा कि मिसेस ओकेंटम ने 5 पाउंड की शर्त लगाई हुई थी और वो जो है उनने जब वो अपनी गाड़ी चला रही थी अचानक उनकी गाड़ी के आगे ही की वाइफ और डॉटर आ जाते हैं और उनके जो है डेथ हो जाती है। तो वो आदमी जो रिवेंज लेने का सोचता है। तो जब वो रिवेंज लेने का सोचता है तो मिसेस ओकेंडम का उन्होंने फोटोग्राफ देखा था और वो जब देखता है कि लेडी जो है उनके सामने, जब उनकी नज़र लेवल के ऊपर पड़ती है, जो सूटकेस के ऊपर लेवल होता है उसके ऊपर मिसेस ओकेंडम का नाम लिखा होता है, वो आदमी पहचान जाता है बट सस्पेंस रखता है। आफ्टर डिस्कशंस पहले वो मरना चाहता है, फिर कोरियन गर्ल, एक इंसिडेंट होता है, कोरियन गर्ल 1953 का, वो उस लड़की को देखता है जो 14 साल की एज की होती है। उनको देख के अपनी बेटी की याद आती है और वो सोचता है कि काश मेरी बेटी जिंदा होती, इसी तरह दिखती। इन स्पाइट ऑफ वर्स्ट पेन एंड एंग्री ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम द लेडी। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जब वो आदमी मिसेस ओकेंडम को मारने की कोशिश करता है एंड कहता है कि मैंने आपको पहचान लिया है, देन मिसेस ओकेंडम प्लेड अ ट्रिक। वो कहती है कि किल मी ब्लॉट आउट दैट पिक्चर विच वॉल इन माई माइंड, आई स्वेयर यू, आप मुझे मार दें। और इससे बेहतर ये कि मिसेस ओकेंडम कहती है कि इस जो सीन मेरे जहन में घूमता रहता है कि मैंने मर्डर किया था, आप मुझे मार दें, अब मैं कसम खाती हूँ ये एक एक्सीडेंट था। बट वो आदमी फिर सोचता है कि इट मीन मिसेस ओकेंडम को मारना मेरा रिवेंज नहीं होता, तो उन्हें जिंदा छोड़ देता है। जब वो जाता है फिर अचानक अपना सूटकेस भूल जाता है
देखता है कि मिसेज ओफेंडम इज़ वेरी हैप्पी, और वो जब गेट खुलता है देखता है मिसेज ओफेंडम खुश है। वो अपना रिवॉल्वर निकालता है और मिसेज ओफेंडम को खुश देख के उनको वो फायर करता है, मिसेज ओफेंडम की डेथ हो जाती है। फिर वो अपना सूटकेस लेता है और चला जाता है। ये जो एंडिंग होती है सरप्राइजिंग एंडिंग होती है द मेलोड्रामा एज वी हैव स्टडीड। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पढ़िएगा। इसके समरी मैंने आपको समझा दिया और एडवाइस करवा दिया है, और इसमें मेन कैरेक्टर्स और इम्पोर्टेंट लाइन हमने टेक्स्ट की डिस्कस कर दी है। होपफुली आपको ये चैप्टर जो समझ में आ गया होगा।